Video we are going to talk about Om Prakash Valmiki's lesson Jhutan. It is subtitled as A Dalit's Life. It's also an extract. So let's get started right away. Now let us first talk about the author. Author के बारे में हम बात करेंगे. Om Prakash Valmiki, he was born in 1950 and he died in 2013. ये एक दलित राइटर थे, एक शायर थे एंड ए सोशल एक्टिविस्ट. ही वॉज बॉर्न इन मुजफ्फरनगर यूपी. ही वर्कड इन गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड लिव्ड इन देहरादून आफ्टर हिज रिटायरमेंट. ही वॉज सेंसिटिव टू हिज स्टेटस एज आउटकास्ट. आउटकास्ट बोलते हैं एक एज अनटचेबल को. तो ही वॉज ए काइंड ऑफ सेंसिटिव पर्सन. He has seen Dalit movement led by Dr. B.R. Ambedkar from close quarters. Dr. B.R. Ambedkar has written a book called Annihilation of Caste, which is also about Dalits and their rights. उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है Annihilation of Caste. It tells us about Dalits and their rights. The Valmiki community, a subgroup among Dalits, is ranked the lowest in Hindu caste hierarchy. Valmiki community जो है जिससे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी बिलोंग करते थे, ये कंसिडर किया जाता है a subgroup among Dalits and is ranked lowest in Hindu caste hierarchy. It was the name of this community that Om Prakash Valmiki used with pride as his surname. So फख्र से उसने अपना सरनेम जो है वो वाल्मीकि रखा. Now you came to know about why he has kept his surname is Valmiki. In Hindi literature, he is the spokesperson of Dalit community. Dalits के बारे में उसने बोला है, उनके हुकूक के बारे में उसने बोला है. His overall work of literature concerns itself with the Dalit experience of subjection and injustice. जो भी उसने अपनी बुक्स में लिखा है, उसने लिखा है कि दलित्स के साथ जो अनटचेबल्स है उनके साथ कैसी नाइंसाफ़ी की जाती है हमारी सोसाइटी में. Now let us talk about the works he has written. क्या क्या बुक्स इसने लिखी है. उनमें से कुछ बुक्स है झूठन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो 1997 में लिखी गई. सदियों का संताप 1989. बस अब बहुत हो चुका 1997. अब और नहीं 2009. सलाम 2000. घुसपैठिए 2004. दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 2001. सफाई दिवाकर 2009. Translated Kanchan Elahi's work Why I Am Not a Hindu 1996. So you can see all these books, they have been written in Hindi. Now these are the awards he has received. Dr. Ambedkar Rashtriya Samman उन्होंने हासिल किया है. He has also got 8 Hindi World Convention Awards. He was fellow at Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, until his death. Now let's talk about Dalit literature. क्या होता है. Dalit literature is also called Dalit Sahitya, इसको बोलते हैं. Sahitya is the Hindi word for literature. Dalit literature is the literature written by Dalits about their rights. उनके rights के बारे में है. In 1958, Dalit literature as a term was defined to aware the people about the injustice Dalits received from the hands of the upper castes. Then who is a Dalit? किसको हम दलित बोलेंगे. Dalit literally means broken or scattered. Is the name for people belonging to the lowest caste in India, previously characterized as untouchables. जिनको हम untouchables कहते हैं, तो उनको Dalits भी कहते हैं. Dalits were excluded from the fourfold Varna system of Hinduism and were seen as performing a fifth Varna, also known by the name Panchama. तो उनको हिंदुइज्म से निकाला गया है. तो हिंदुइज्म में ये नहीं कंसिडर किया जाता है कि हिंदुइज्म में ये क्लास ऑफ सोसाइटी रहे. देन दलित्स प्रोफेस वेरियस रिलीजियस बिलीफ्स. उसमें दलित्स कोई भी मज़हब जो है इख्तियार कर सकता है, लाइक हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम. देन द ऑफिशियल टर्म जो है विच हैज़ बीन गिवन बाय अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द दलित्स इज it is scheduled caste.
Now in this picture you can see that a Dalit boy is being beaten up by some lads. This picture shows the percentage of Dalits across India. Now let's talk about the text. जो टेक्स्ट है दलित जो टेक्स्ट है तो इसके बारे में हम बात करेंगे. दिस टेक्स्ट वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी. इसको हिंदी में लिखा गया. इन द स्टोरी वाल्मीकि रिकॉर्ड्स हिज एक्सपीरियंसेस एज ए दलित. व्हाट इट मीन्स टू बी ए दलित. ही टेल्स अस डे टू डे एक्सपीरियंसेस ऑफ लोअर कास्ट लोग जो है उनके डे टू डे एक्सपीरियंस, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं. And it's a powerful story of pain and discrimination. So it tells us दर्द भरी कहानी है और भेदभाव के बारे में है. So it also tells us that caste hierarchy is something which still exists in our society, and it's also about inner dignity, self-respect and resilience of the Dalits. Valmiki turns out to be a hero in this ऑटोबायोग्राफी. तो वाल्मीकि जो राइटर है वो यहाँ पे प्रोटैगोनिस्ट है और जो मैन कैरेक्टर स्टोरी में है, ही टर्न्स आउट टू बी ए हीरो इन दिस ऑटोबायोग्राफी. ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स फिलॉसफी. बहुत ही मुतासर हुए थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो फिलॉसफी थी कि जो अनटचेबल्स है दे आर ऑल्सो द ह्यूमन बींग्स, दे शुड बी गिवन द राइट्स विच आर ड्यू टू देम. He waged a war against physical and mental subjugation. Upper caste Hindus considered literature. तो क्या होता था कि आज भी जो है हिंदूज या जो अपर कास्ट हिंदूज होते हैं या किसी भी कम्युनिटी में अपर कास्ट लोग जो होते हैं, किसी भी मज़हब में अपर कास्ट, वो कंसिडर कर द अपर कास्ट हिंदूज. व्हाट दे यूज्ड टू से, they used to say that literature is their exclusive domain. Literature उन्हीं के लिए है और they are supposed to read and write literature. Valmiki makes literature accessible for all and therefore he gives voice to the voiceless. तो वो voice देते हैं किनको, जिनके पास आवाज़ नहीं है. Like दलित्स, दे डोंट हैव द वॉइस. उनकी आवाज़ तो है लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है. सो वाल्मीकि कम्स ए काइंड ऑफ स्पोक्स पर्सन फॉर देम. जूटन इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल की स्टोरी नहीं है बट दैट ऑफ ए कम्युनिटी की. इट टेल्स अस द स्टोरी अबाउट ए कम्युनिटी एंड ए डॉक्यूमेंट. इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ लॉन्ग साइलेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द दलित्स. It was translated into English in 2003 by Arun Prabha Mukherjee, who is a professor of English at York University in Toronto. It tells us about Valmiki's early life and school days and highlights the social injustices. किस चीज़ के बारे में ये स्टोरी जो है वाल्मीकि ने लिखी है, तो ये स्टोरी है उसकी अर्ली लाइफ के बारे में, उसकी स्कूलिंग कैसे हुई है और इट ऑल्सो हाईलाइट्स द सोशल इनजस्टिस, उनके साथ नाइंसाफ़ी कैसे होती है सोसाइटी में. एज द स्टोरी ऑफ पॉवर्टी, पेन एंड ह्यूमिलेशन इन हिंदी. जूटन, लेट्स टॉक अबाउट दिस टाइटल जो है जूटन, किस चीज़ को हम बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं द लेफ्ट ओवर फूड. जो कुछ बचा कुचा खाना होता है, अगर किसी ने खाया हुआ प्लेट में तो कुछ खाना अगर बच गया तो उसको हम बोलेंगे दैट दिस इज कॉल्ड जूटन एंड विच इज़ यूजुअली मेंट टू बी थ्रोन अवे. Now let's do the analysis of the text. Let's first start with the locality. कि ये जो lesson start होता है इसमें पहले लोकेलिटी दिखाई जाती है. लोकेलिटी का जिक्र है कि उसमें ये किस किस्म की लोकेलिटी है. ओम प्रकाश ही टेल्स अस दैट ही लिव्ड एडजेसेंट टू द चंद्रबेन टगास काउशेड. सो उसका घर वहाँ पे था जहाँ पे अपर कास्ट लोगों के काउशेड हुआ करते थे. सो द होम्स ऑफ चोरस वर ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड अवे फ्रॉम द होम्स ऑफ अपर कास्ट पीपल. जो उनके घर होते थे उन अपर लोअर कास्ट पीपल जो दलित्स थे, जिनको छुरास भी कहते थे, तो ये अलग रहते थे और जो अपर कास्ट लोग जो है वो अलग रहते थे. सो दे वर सेपरेट, they were living apart from each other. दिस प्लेस वॉज ऑलवेज कवर्ड विथ फिल्थ. ये एक ऐसी जगह थी तो वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी. एंड द सेम स्पॉट वॉज यूज बाय द विलेजर्स फॉर डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट इशूज़. देन लेट्स टॉक अबाउट वाल्मीकि's फैमिली. उसमें कौन कौन से मेंबर थे. एक तो ये रह रहे थे वो वाली बस्ती में जिसको बोल रहे थे छोरा बस्ती. He had 5 brothers, 1 sister,
two chachas, one tau, and his family. All members of family worked hard, but they were not able to make both the ends meet. ये लोग बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनका गुजारा जो है वो मुश्किल से होता था. They did all sorts of work, but were scarcely paid for their work by upper castes. तो वो अपर कास्ट लोगों के घरों में जाते थे, तो वहाँ पे उनको कभी कभी तनख्वाह दी जाती थी, तो कभी कभी बिल्कुल उनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ता था. नाउ वाल्मीकि इज एडमिटेड टू द स्कूल. उसको स्कूल में एडमिट किया जाता है. आफ्टर लॉट मेनी रिक्वेस्ट द ऑथर वाज एडमिटेड टू स्कूल वेयर ही रिसीव्ड ब्रूटल ट्रीटमेंट नॉट ओनली फ्रॉम द टीचर्स बट ऑल्सो फ्रॉम द क्लासमेट्स. तो टीचर्स भी उसको उतना ज़्यादा केयर नहीं करते थे, टीचर्स उस पर जुल्म डालते थे, और सो वॉज द केस विद हिज फ्रेंड्स. He was called by the names like छोरे का उसको बोलते थे by other classmates, and they would beat him without any reason. उसको बिला किसी वजह से वो मारते थे. All kinds of tricks were tried on him to shoo him away from the school. This tormented life made him introvert and irritable. तो वहाँ पर जो है हर एक किस्म का जो है ट्रिक यूज़ की जाती थी उसको स्कूल से भगाने के लिए. तो उसको लिए अजियत भरी जो ज़िंदगी थी, तो जिसकी वजह से वो एक इंट्रोवर्ट बन गया, वो बिल्कुल बात वगैरह भी नहीं करता था और इरिटेबल बन गया. तो ही ओनली मेड 2 फ्रेंड्स जिनका नाम था राम सिंह एंड सुखन सिंह. Now what happens one day, there comes the new headmaster in the school. So the headmaster and the boy. One day the headmaster Kaliram ordered him to sweep the rooms of the school and the playground for 3 consecutive days, which was hard and tiresome for his small physique. तो क्या होता है कि हेडमास्टर उसको ऑर्डर देता है कि यू आर सपोज टू स्वीप द क्लास, नॉट ओनली द क्लासरूम्स बट ऑल्सो द प्लेग्राउंड फॉर 3 consecutive days. लगातार 3 दिन तक आपको क्लासरूम्स भी साफ़ करने हैं और पूरा प्लेग्राउंड भी साफ़ करना है. तो ये जो उसके लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल काम था. तो जो ही ये काम कर रहा था, हिज फादर हैपन्स टू सी हिम स्वीपिंग ऑन द 3rd day, हु बिकम्स वेरी फ्यूरियस. उसके बाप को फिर गुस्सा आ जाता है जब भी वो अपने बच्चे को देखता है कि वहाँ पे उससे इतना ज़्यादा काम लिया जा रहा है जिसके he was supposed to study with other students in the school. On the other hand, he is sweeping the school compound. So he becomes very furious. Here we can see that Dalits are there asserting their pride. When father comes to the rescue of his son, father confronts headmaster Kaliram and refutes subjugation to the latter. He raises himself in the eyes of his son who took him for a role model. तो जहाँ से जब इसने confrontation की हेडमास्टर के साथ, तो उसको बोला कि that what you are doing is not good, it is unethical. तो ये काम जो आप करवा रहे हो बच्चे से, ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने आप को जो है अपने बच्चे की नज़रों में से ऊंचा हो जाता है, उसका मकाम ऊंचा हो जाता है. तो he raises his son takes him as a kind of role model. He helps in strengthening the identity of Dalits and shapes the personality of his son. इस चीज़ इंसिडेंट से क्या होता है कि he helps in shaping the strengthening the identity of Dalits and shapes the personality of his son. तो उसकी personality जो है वो निखर जाती है. Now father's efforts, father क्या करता है? Father visits homes of many Tyagis like upper caste people. उनके घर जाता है, talks about the ill treatment his son received, hoping that they would chastise headmaster Kaliram, but all in vain. तो उसने वो घर गया, तो अपर कास्ट लोगों के घरों में गया और उनसे बात किए कि उसके सन के साथ, उसके बेटे के साथ क्या इल ट्रीटमेंट हुआ स्कूल में. तो बट नोबडी पेड एनी हीड, ऑल वेंट इन वैन. तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. देन ही विजिट्स द हाउस ऑफ सागवा सिंह त्यागी द प्रधान, अपॉन हुज रिकमेंडेशंस ओम प्रकाश वाज अलाउड टू री एंटर द स्कूल. तो उसके बाद एक सिफारिश के वजह से जो है उसको फिर से स्कूल में अलाउ किया गया. नाउ हार्वेस्ट हार्डशिप्स. हार्वेस्ट के टाइम पे भी इन दलित्स को जो है बहुत ही, एक तो बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, तो ऊपर से उनको जो वेजेस है वो बहुत ही कम दिए जाते थे. दे वर नॉट गेटिंग मनी एज सॉर्ट ऑफ wages for their work, but they got 1 sheep of grain for cutting 21 as wages. 1 day's wage wasn't worth even
ए किलो ऑफ वीट, 1 किलो वीट के बराबर भी वो नहीं होता था। नेदर ग्रेन नॉर मनी वॉज गिवन फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ग्रेन। लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ ग्रेन जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। इन बेचारों को उस पर भी कोई जो है पैसे वगैरह नहीं दिए जाते थे। What happened here is what happened at a wedding party. क्या होता है, सुखदेव सिंह Tyagi's daughter was getting married. Valmiki's mother would clean their house 10 to 12 days before the wedding. तो सुखदेव सिंह त्यागी की जो डॉटर तो उसकी शादी होने जा रही थी और वाल्मीकि की माँ जो है वो वहाँ पर गई थी 10-12 दिन पहले, तो उसको वहाँ पे सफाई वगैरह करनी थी। when on the day of wedding क्या होता है, आफ्टर द बारात हैड गॉन, जो ही वो निकले मदर ने क्या किया, तो उसने बच्चों के लिए फूड मांगा सुखदेव सिंह से, तो जिसकी वजह से उसको बहुत ही वहाँ पे जलील होना पड़ा। शी वॉज बैडली ह्यूमिलेटेड एंड वॉज कॉल्ड नेम्स बाय सुखदेव सिंह। तो अपॉन दिस व्हाट शी डिड, द मदर एज इफ टर्न्ड इनटू मदर गॉडेस दुर्गा, उसने लाइक गॉडेस दुर्गा का रूप लिया। तो शी बिकेम वेरी एंग्री एंड शी एम्प्टीड हर बास्केट फुल ऑफ जूठन देन एंड देयर। तो जो उसने वहाँ से जूठन लिया था तो वहाँ पर उसने वहीं पर वो फेंक दिया। एंड कन्फ्रंटेड सुखदेव लाइक ए लाइनस एंड लेफ्ट, तो उसका बहुत ही डटकर मुकाबला किया एक शेरनी की तरह और वहाँ से निकली। दस शी asserts her pride and dignity। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बहुत ही मुतासिर हुए और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है उसकी लाइफ पर पड़ा बाद में। नाउ मिसफॉर्चून्स ऑफ द फैमिली, क्या होता है कि कौन कौन सी मुसीबत उन बेचारों को आती है। His elder brother Sukhbir saves the village from wild boar, उसको बचाता है, but later he dies of fever and without proper medication. Jasbir, his younger brother, shoulders family responsibilities. Sukhbir मर जाता है because of fever और जसबीर जो है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है। वाल्मीकि goes back to school only when Babi, Sukhbir's wife, offers her anklet for Om Prakash's education. तो वाल्मीकि को फिर से स्कूल में जाना, तभी उसको स्कूल में अलाउ किया जाता है या जा सकता है कि बाबी ने अपना एंकलेट जो है वो बेच दिया फॉर द सेक ऑफ ओम प्रकाश's education. Thus she shows the familial bond and her affectionate. No more caste discrimination. Now you can see that the students and the teachers start respecting Om Prakash Valmiki in the school. Valmiki befriends Shravan Kumar Sharma in the 6th grade in addition to Ram Singh and Sukhan Singh who were in different section. वाल्मीकि का एक फ्रेंड बनता है जिसका नाम है श्रवण कुमार शर्मा और वो 6th ग्रेड में, राम सिंह और सुखन सिंह तो ऑलरेडी उसके फ्रेंड्स थे। Once Valmiki saves Shravan Kumar from Chandrapal Verma who used to bother him every now and then. After that incident they became bosom friends. तो क्या है, श्रवण कुमार शर्मा को एक बार बचाता है फ्रॉम चंद्रपाल वर्मा से, जो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करता रहता है स्कूल में। तो उस इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि these two people they become bosom friends. He was no longer taunted by other classmates when Chandrapal was around. उसको तो कोई फिर बाद में उसके साथ छेड़ता नहीं था। Slowly and gradually Valmiki was accepted by his classmates. उसको accept किया जाता है because he has shown the wonderful performance in exam. तो एग्जाम में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया and he was made the class monitor also. This boosted his self confidence. जो उसकी खुद एतमादी सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बढ़ गई, जिसकी वजह से उसकी सीट जो है which was moved from back to the front. Now this is the end of the video. Do subscribe to our channel. Thanks for watching. Do subscribe for more videos.